Good evening, children. After completing what the first application of Gaussian, that is what linear charge density, and when we are considering what when we have already we considered what a linear charge conductor, infinite charge conductor, okay, due to which electric field is already we derived. Now in the second case, what we derived previously, that is what electric field due to plane sheet, okay, infinite plane sheet. Now we have to come to the what third application of the what the Gauss theorem, that is what we have to derive electric field due to a uniformly charged thin spherical shell. How much electric field is developed by a what thin spherical shell? What is the meaning of spherical shell? Spherical shell होता क्या है? Tell me. Spherical shell means what? It is a what? Ring-like structure in the form of what? Sphere. Are you getting? Having what? Radius r. Inside what? Inside is hollow. Inside क्या? Hollow है. ठीक है? एक ring-like structure है shell का. ठीक है? अब देखो इसमें क्या है बेटा, इसका जो रेडियस है इस स्फीयर का वो है r. कैपिटल R is the radius, and we have to determine how much electric field developed by this spherical shell. ये है, ये क्या है? spherical shell है, ये वाला. सबसे पार्ट में कौन सा spherical shell है? ठीक है, right over here also spherical shell. और ये ठीक, हमने spherical shell कंसीडर किया है. इसका spherical shell का रेडियस कितना है बेटा? r. Now we have to determine how much electric field developed by this spherical shell inside the sphere, outside the sphere, as well as on the sphere. हमें तीन केसेस डिस्कस करने इसमें, जब कि कितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा इनसाइड, ऑन द, एज वेल एज व्हाट, आउटसाइड. तीन केसेस डिस्कस करेंगे इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, एंड it is already told to you, Gaussian surface depends on the what shape of the conductor on which charge is placed. So here we are considering what a spherical shell. ये spherical shell है जिसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मैनर. ठीक है? As we know, if the charge is uniformly distributed on the surface of the what spherical shell, ओके, तो उसका हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? इसके सरफेस एरिया पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली. तो वहां पर याद करो हमने क्या कहा था? सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमने क्या यूज किया था? सिग्मा वाला नोटेशन यूज किया था. सिग्मा इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी. नाउ तो पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहला केस क्या है? व्हेन पॉइंट P lies outside the spherical shell. This is a spherical shell, and we have considered a point P, that is what? Outside the spherical shell at this point P. At this point P, we have to determine how much electric field developed by this spherical shell. और spherical shell ये है, तो याद रखो अगर spherical shell है तो अगर मैं इसका चार डायरेक्शन देता हूं, what about the direction of electric field? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा. किससे? सरफेस से. रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली हर इस पॉइंट कंसीडर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहां से यहां. मैंने बस चार पोजीशन कंसीडर किया है. यहां से डायरेक्शन ये होगा, यहां से यहां से यहां. राइट. सो रेडियली सरफेस से क्या होता है? सरफेस से क्या होता है? रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड होता है. तो यहां मतलब इस वाले पोजीशन के लिए रेडियली इधर, इस वाले के इधर, इधर इस वाले के इधर, इस वाले के इधर. अब मैंने एक पोजीशन कंसीडर किया एट पॉइंट P. वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय दिस स्फेरिकल शेल. प्लीज कीप इन माइंड द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस स्फेरिकल शेल. As we have to determine the electric field at outside of the spherical shell,
The first case when point P lies outside the spherical shell. For this condition, we have to determine electric field. So, suppose at this point we have to determine electric field P. So, at this point, from this point, we have to draw a what? A Gaussian surface in this manner. उसी point से क्या ड्रॉ करोगे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे. मैंने क्यों स्फेरिकल शेल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे यहाँ पर? Because the shape of the conductor is in which form? Spherical form. Are you getting a point? That's what the Gaussian surface is also in the form of what? Sphere. इस स्फीयर जो स्फीयर स्फेरिकल शेल है, कि कितना चार्ज अपने अंदर कैरी किया गया है, कैरी किया हुआ है by considering all the positive charges. Suppose ये सारे चार्ज मिलके कितने Q चार्ज अपने में एनक्लोज किया हुआ है. कितना चार्ज एनक्लोज किया गया है? Q. Now the total charge after writing this one, first of all you have drawn this diagram. First of all you have to write this topic under this one. The first case when point P lies outside the spherical shell, and then you have to draw this diagram, okay, and then you have to write this one. The total charge Q, the total charge Q inside the Gaussian surface, ये Gaussian surface हुआ, ये आपका Gaussian surface हुआ, ये Gaussian surface हुआ. The total charge Q, this is the charge Q which is uniformly distributed on the spherical shell. The total charge Q, what is called Q? Keep in mind the total charge Q inside the Gaussian surface is the charge on the shell of radius r. ठीक है, वही मतलब चार्ज Q क्या होगा? वही चार्ज होगा जो कहां पर है? is on the shell of radius r. जो इस रेडियस r के शेल में जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वही क्या होगा? Q चार्ज होगा. Are you getting a point? The total charge Q inside the Gaussian surface. इस Gaussian surface के अंदर कितना चार्ज है? Inside the Gaussian surface is the charge on the spherical shell of radius r. ठीक है. अब इस Gaussian surface में टोटल चार्ज कितना है? जितना चार्ज कहाँ प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है, इस spherical shell के अंदर प्रेजेंट है. यही चार्ज क्या डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा. एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? रेडियली आउटवर्ड्स. अगर इस पॉइंट के लिए कंसीडर करूं तो रेडियली क्या है? आउटवर्ड्स. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? और इसी पॉइंट हमें क्या निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. तो अब याद रखो ये स्फेरिकल शेल का एरिया क्या होगा? ऑन द शेल ऑफ रेडियस आर, ये आर था, और इस जिस स्फेरिकल शेल का रेडियस कैपिटल आर है, जिसमें की चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया इज व्हाट? 4 पाई r स्क्वायर फॉर द स्फीयर. कितना होता है? एंड एरिया A इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो स्फेरिकल शेल Q है, जो स्फेरिकल शेल है उसके अंदर चार्ज Q है. इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? Q है. इस स्फेरिकल शेल के अंदर चार्ज कितना है? Q है. जो कौन कैरी किया गया? स्फेरिकल शेल कैरी किया गया, और इस स्फेरिकल शेल का एरिया कितना है? 4 पाई r. ठीक है, समझ में आ गई बात? उसके बाद अब व्हाट अबाउट द टोटल चार्ज Q? This total charge Q, which is uniformly distributed on this spherical shell, we can write in this manner. Therefore, Q is equal to sigma into A. A मतलब area of the spherical shell, उसमें जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है, याद करो हमने बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी में बताया था ना, Q is equal to sigma A. Sigma is what? Surface charge density. Surface चार्ज डेंसिटी. ठीक है. सिग्मा तो ये ए की वैल्यू कितनी है? 4 पाई r स्क्वायर लिखा हमने यहाँ पर, 4 पाई r स्क्वायर. तो टोटल Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? Q इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा. दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस. ये आ गई वैल्यू. अब इसके बाद फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस. अब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इसके गॉसियन सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है? गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बताया था मैंने.
E इंटू सरफेस एरिया, याद आ रहा है? E इंटू ds वाला, E इंटू सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? कितना निकलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया, बताया था मैंने, ई इंटू ds, डी फाई इक्वल टू ई इंटू ds। यहाँ पर फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। तो कितना फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द वॉट टुवर्ड द वॉट गॉसियन सरफेस, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा इस गॉसियन सरफेस से? फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। Why 4πr²? Because flux through the Gaussian surface. Keep in mind, flux through the ये Gaussian surface. Gaussian surface का रेडियस कितना है? स्मॉल r. Gaussian surface का रेडियस कितना है? स्मॉल r. तो आंसर है व्हाट? फाई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना? इसमें सरफेस एरिया कितना है? ये भी क्या है? स्फीयर के फॉर्म में है कि नहीं? गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में? स्फीयर के फॉर्म में। इसका रेडियस कितना है? आर है, बिकॉज इसी पॉइंट में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो 4 इंटू ई इंटू 4πr²। तो बाय गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू 2/ε0, ये हमें पता है। बाय गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू 2/ε0। फाई की वैल्यू कितनी है? ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू 2/ε0। तो ई इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ कीप इन माइंड हियर, यह पता है 2/ε0। फाई की वैल्यू e इंटू 4πr² आ गया, q/ε0, ई को ही करंट दो, 4π नीचे ले जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू ये r² नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। इसको यहां पर लिख लो, ये ऐसा आ जाएगा पहले ε0 इंटू 4πr²। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, क्या किया? 1/4πε0 लिख दिया अलग से, 1/4πε0 into q/r²। So this is the what value of electric field developed by this spherical shell outside the what? Outside the sphere. ये spherical shell अपने से आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। Keep in mind this R is outside. हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं? स्फेरिकल शेल के बाहर निकाल रहे हैं। And from this formula you have to justify this electric field. The strength of this electric field at this point depends on the value of what? R. Because this value is not going to change. The value of is not going to change. Why? It is uniformly distributed. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट एक बार हो गया तो हो गया, क्या चेंज होगा? R. R की वैल्यू जितना पास होगा स्फेरिकल शेल के बाहर, जितना होगा, जितना पास होगा स्फेरिकल शेल के, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Why? Because it is denominator. If the value of R is more, electric field is what? जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वीक होगा। ठीक है, ठीक है। In this way you have to determine what? Electric field. In the second case we have to determine electric field inside the what? Spherical shell. And in the third case we have to determine the electric field on the sphere. Three cases we have to consider separately. ठीक है। Now, after deriving the condition for the electric field outside the spherical shell, previously outside the spherical shell, now we are going to determine the electric field on the surface of the spherical shell, when point P lies on the spherical shell. पहले वाले केस में क्या था? स्फेरिकल शेल के बाहर किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना था। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल वही सेम कंडीशन है, द चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल शेल। अब क्या करना है हमें? ऑन द उस स्फेरिकल शेल के ऊपर ही कितना, स्फेरिकल शेल के ऊपर किसी पॉइंट P पे, इसी स्फेरिकल शेल पे किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। ठीक है। अब प्रीवियस केस में सेंटर से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस स्मॉल r था, यहाँ भी डिस्टेंस r होगा, लेकिन क्योंकि ऑन द स्फेरिकल शेल है, मतलब रेडियस क्या होगा? मतलब इस r की वैल्यू क्या होगा? कैपिटल R के बराबर है। क्यों? तो स्फेरिकल शेल पे ही निकालना है, इसी पॉइंट पे निकालना है, मतलब जितना रेडियस स्फेरिकल शेल का है उतना ही क्या होगा? r की वैल्यू। ठीक है। सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, we have to show that means radially outward from each and every direction.
हम हर पॉइंट से बता सकते हैं, लेकिन हमने 4 पॉइंट को शो किया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? As in the previous case, the direction of electric field as well as the direction or position at which the electric field is determined is in the same direction. दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, अब ये बताओ इस सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितनी वैल्यू है इसकी, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करता है? स्फेरिकल शेल के एरिया पे डिपेंड करता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। दैट मींस व्हाट? सिग्मा इनटू ए, बताया था, सिग्मा इनटू ए। नाउ द गॉसियन सरफेस, अब ये बताओ जब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तब जो स्फेरिकल शेल को हमको ड्रॉ करना पड़ा था। अगर इसी स्फेरिकल शेल के ऊपर जितना रेडियस है उसी के ऊपर हमें क्या डिटरमाइन करना है? On the surface of the spherical shell determine करना है, on the spherical shell when point P lies on the spherical shell. What about the Gaussian surface? Gaussian surface क्या होगा? यही होगा, इसी के ऊपर बनेगा Gaussian surface। इसी पॉइंट P पर इसको अलग से शो कर सकते हो कि Gaussian surface वो रिंग जितना ही होगा। ये तुम्हारा इंटरव्यू यही Gaussian surface होगा। जिस पॉइंट P पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलता है उसी पॉइंट P हम P से क्या बनाते हैं? ये गॉसियन सरफेस के लिए हो गया, है ना? ना अब देखो इसमें द गॉसियन सरफेस जस्ट एनक्लोजेस द स्फेरिकल सरफेस। ये गॉसियन सरफेस कितना एनक्लोज कर रहा है? जितना स्फेरिकल शेल है। जस्ट एनक्लोजेस द स्फेरिकल सरफेस प्लस टू द गॉसियन सरफेस कितना होगा? या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, डायरेक्टली सब लिखते हो। मैंने यहां पर क्यों मेंशन किया जस्ट एनक्लोजेस? व्हाई सो? बिकॉज the radius of the spherical shell is equal to the what? Small r, because इसी पॉइंट पे क्या करना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन, जितना रेडियस है उसी पॉइंट वो r किसी बराबर, r के बराबर ही होगा। नाउ व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस? E phi is equal to E into 4 pi r square. Again I am telling what is the value of electric flux? It is nothing but it is the product of E into surface area। और surface area क्या है स्फेरिकल शेल का? यहाँ पर 4 pi स्मॉल r स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन r की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगी? पाई इज इक्वल टू ई इनटू सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बाय गॉस थ्योरम वी नो हमेशा से करते हैं, पाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये दोनों में ये अगर पाई इसकी वैल्यू इतनी है, पाई की वैल्यू इतनी है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई स्क्वायर नीचे चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का स्क्वायर। इस क्यू की वैल्यू कितनी है? सिग्मा इनटू ए है। सिग्मा ए इनटू ए मतलब कितना होता है वैल्यू? कितनी वैल्यू होती है सिग्मा ए की वैल्यू कितनी है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होना था, लेकिन स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर की वैल्यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मतलब तो आर किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के बराबर होगा। यहां पर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? देखो यहां पर क्यू की वैल्यू सिग्मा 4 पाई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर आल्सो कैंसल आउट। व्हाट अबाउट द वैल्यू? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाई epsilon naught is the value of what? Electric field. This is the value of what? Sigma electric field in case of what? When we have determined the electric field on the surface. So on the surface of the spherical shell, what about the value of electric field? E is equal to sigma by epsilon naught. This is the value of electric field. It is the ratio of surface charge density divided by epsilon naught. अब इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। Regarding of it only depends on the value of surface charge density, that is what? Sigma. Surface charge density जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। So what about the value of formula for this case? When the point lies on the surface of the spherical shell, जब हमें डिटरमाइन करना है on the spherical shell, तो क्या है फॉर्मूला? E इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हर वाले केस के लिए फॉर्मूले याद रखोगे, बिकॉज हर केस के लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
मैंने जितने फॉर्मूले बताए हैं अभी तक, यू हैव टू नोट डाउन द फॉर्मूला. अब ऐसा है नहीं कि बिना, हाँ, बट इट इज द कंप्लीट डेरिवेशन. व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड इन द व्हाट डायरेक्ट फॉर्म. इट इज नॉट आस्क्ड इन द व्हाट डायरेक्ट फॉर्म. यू हैव टू गो थ्रू द व्हाट डेरिवेशन ऑल्सो. डेरिवेशन पता है तो आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपके लिए क्या होगा, आसानी होगी. Are you getting? So keep this thing. So what about the formula? Sigma by epsilon naught. In the next case we will discuss what? When the point P lies inside the spherical shell. पहले outside, फिर on the surface of the spherical shell. Now what? Inside the spherical shell करेंगे इसको. Now the third case. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के अंदर. थर्ड केस डिस्कस करेंगे, वही टॉपिक चल रहा है. व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल. पहले स्फेरिकल शेल था, आउटसाइड निकाला था हमने, फिर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल लेना निकाला. जब आउटसाइड था तो डिस्टेंस कितना था? आर था, स्मॉल आर. ऑन द सरफेस डिस्टेंस कितना था? कैपिटल आर. स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर. नाउ इन दिस केस वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. This is point P. This is point P. At inside the spherical shell, at this point, we have to determine the electric field. अगर इस point P पे determine करना electric field, तो ये वाला इस point पे क्या बनाना पड़ेगा आपको? एक Gaussian surface बनाना पड़ेगा. We have to consider what? A Gaussian surface. याद रखना जिस point पे निकालने बोलता है electric field, at that point we have to draw what? One Gaussian surface. Now here, at this point. We are going to what? Draw what? What Gaussian surface? हमने Gaussian surface draw किया. ये वाला Gaussian surface है. अब देखो इस केस में कैपिटल आर, ये आर तो उसका रेडियस है स्फेरिकल शेल का. स्मॉल आर जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, इस पॉइंट पे हमने क्या किया? Gaussian surface कंसीडर किया. अब बात कहने वाली बात है, what about the total charge enclosed by this Gaussian surface? इस Gaussian surface के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? कितना होगा? Q is equals to 0 होगा. Why so? Because this is the spherical shell. अंदर कुछ है क्या? Inside what? Inside what? Nothing is there. That means what? Inside no charge is present. The charge is present on the what? On the ring of the what? Spherical shell. स्फेरिकल शेल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो 0 है. राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ट्रैवल करेगा? आउटसाइड. बिकॉज ऑन द सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इनसाइड आएगा क्या? नो. स्फेरिकल शेल के स्फेरिकल शेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ रेडियली बाहर जाएगा. इनसाइड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0. राइट. सो बिकॉज चार्ज Gaussian surface के अंदर कितना चार्ज है? नो. That's about Q equals to 0. We will see later. So first of all, you have to write. And what about the electric flux? Electric flux through the Gaussian surface. क्या होगा? Same formula. Phi is equals to E into surface area. जितना electric field डायरेक्शन सेम है दोनों का. E का और जिस डायरेक्शन पे R का मतलब पॉइंट P है, तो phi is equals to E into surface. यहाँ पर देखो E into डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों पुट अप करें? बिकॉज जिस पॉइंट को हमें निकालना है इलेक्ट्रिक में दोनों डायरेक्शन सेम है. cos 0 यहाँ पर एंगल क्या है? 0 डिग्री. याद करो हम करते थे ना phi is equals to क्या करते थे? E into surface area. दोनों बीच में एंगल, ds बीच में एंगल. यहाँ पर हर जगह में एंगल 0 डिग्री. दैट्स व्हाट वी आर राइटिंग डायरेक्टली. phi is equals to E into surface area. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है. सरफेस एरिया क्या है इस Gaussian surface का? 4 pi small r square. ऑन द सरफेस के लिए 4 pi कैपिटल आर स्क्वायर था. यहाँ पर इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ये भी तो एक स्फेरिकल है. इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 pi r square. E into surface area. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस Gaussian. इस Gaussian surface की बात हो रही है. इनसाइड द Gaussian surface. Now by Gauss theorem, applying Gauss theorem, you know this formula. Phi is equals to Q by epsilon naught. ये phi का लिए है, phi के लिए दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. हमने दोनों एक परम्यूटेशन पसंद करके इक्वेटिंग these two values E into 4 pi r square by Q by epsilon naught. ये वैल्यू इधर आ जाएगी. E is equals to Q by 4 pi r square into epsilon naught. Q की वैल्यू क्या है?
Q की वैल्यू 0 है, राइट? सो राइट डाउन चार्ज इनसाइड spherical shell is 0. Is 0. कितनी वैल्यू है? चार्ज। ये चार्ज रिंग पे है, इनसाइड है क्या? नहीं। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्यू की वैल्यू 0 हो गई। 0/4πr स्क्वायर r स्क्वायर एप्सिलॉन क्या होगा? 0 by something 0. So when, so what about the value of electric field inside the spherical jar directly? No need calculation. Inside the spherical jar electric field is directly what? 0. और किसी IIT जेईई भी क्वेश्चन आता है, कहीं भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली कैलकुलेशन दिया होगा, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, ऑप्शन दिया होगा, तो नो नीड टू कैलकुलेट। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इनसाइड द सर्कल इज व्हाट? 0. डायरेक्टली यू पुट टू व्हाट? 0. ओके, दिस इज द डेरिवेशन। सभी में एक ही चीज करना है, पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है सभी के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब E इंटू सरफेस एरिया। उसके बाद उसको इक्वेट कर देना है किससे? गॉस थ्योरम से। दोनों को सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है। This is a simple way in which we are deriving this condition. Thank you so much. Okay, after this one we have to draw what the graph. हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्फेरिकल शेल का, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, कंप्लीट डेरिवेशन आया था, उसका ग्राफ बनाने बोला था। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। Now you have to draw a graph or between E and R. What is R? The position of the point P where we have to determine the electric field for what is spherical shell. हमने एक बार R को लिया था आउटसाइड, एक बार R को लिया था ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, एंड एक बार क्या लिया था R को इनसाइड द स्फेरिकल शेल। 3 केसेस डिस्कस किया था हमने सेपरेटली। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ। हमारे स्फेरिकल शेल का याद करो, स्फेरिकल शेल का इस स्फेरिकल शेल के लिए हमें E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? E एंड R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो, हमने जो डिटरमाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये स्फेरिकल शेल है बेटा, स्फेरिकल शेल के अंदर ये इनसाइड हुआ, ये क्या होगा? R, पहला केस, फर्स्ट केस। व्हेन R is less than R, पहला केस। जब R लेस देन R मतलब जो R जिस पॉइंट P पे हमें डिटरमाइन कर इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेरिकल शेल के अंदर में, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ यहाँ, लेकिन ऑन द रेडियस ऑन द सरफेस की बात नहीं हो रही है। जब R की वैल्यू क्या? लेस देन R, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, बिकॉज चार्ज कहाँ प्रेजेंट था? ऑन द स्फेरिकल शेल, है ना? तो व्हेन इनसाइड, when R is equals R is less than inside the spherical shell, इसका मतलब क्या है? inside the spherical shell हमें डिटरमाइन किया था inside the spherical shell जब R की वैल्यू लेस देन R थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला? 0 निकला था, 0। जैसे ही ऑन द सरफेस मतलब जब सरफेस पे आएगा, जब R की वैल्यू ये क्या है? R लेस देन R। इस पॉइंट पे मतलब क्या है? ये पॉइंट क्या है? R इज इक्वल टू R, मैंने बताया था ऑन द सरफेस। जब R की ये ग्राफ R का है, ये ग्राफ E का है, ये एक्स एक्सिस R और ये E, ठीक है ना? दिस ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? R। R लेस देन R इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ऑन द सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? क्या थी वैल्यू? E is equals to 1/4 epsilon naught into Q by R square। निकाला घर में, निकाला, देखिए कॉपी में देखो। ऑन द सरफेस, इस सरफेस के लिए, इस पॉइंट की सरफेस के लिए ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू E is equals to 1/4 Q by R square। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? सपोज इतनी वैल्यू है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड है ऑन द सरफेस। इसको जब ज्वाइन करोगे ऐसे जाके ऊपर में दोनों ग्राफ का ये E का वैल्यू कितना? 1/4 एप्सिलॉन Q by R निकाला था हमने, जैसे निकाला। जैसे ही अब R की वैल्यू
ये ऑन द सेकंड केस, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और थर्ड केस क्या होगा, व्हेन आउटसाइड, आउटसाइड में क्या हो जाएगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन व्हाट आर। पहले सेकंड केस पे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या थी, सेकंड केस फर्स्ट केस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0 थी। सेकंड केस के लिए व्हेन आर इज इक्वल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू q/r², कितनी वैल्यू है। थर्ड, व्हेन r इज ग्रेटर देन r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r², ये वैल्यू आई थी आउटसाइड के लिए। जब आउटसाइड पॉइंट के लिए याद करो, यहां पर जो रिलेशन है, दिस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, और यू कैन राइट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q/r²। 1/4 तो कांस्टेंट है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q/r²। मतलब जैसे जैसे आप r की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ध्यान दो जरा, जैसे जैसे इस वैल्यू r को बढ़ाते जाओगे, जितना दूर जाओगे यहां पर आओगे, जैसे ये ऑन द सरफेस से बाहर गए यहां पर, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर आई, और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई, और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, और आगे तो जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे 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 क्या होगी, डिके होती जाएगी। ऑन द सरफेस से मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ही इस तरीके से जितना दूर जाओगे धीरे 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 जितना दूर जाओगे, आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिके होती जाएगी, जो कम होती जा रही है। इस पोजीशन के लिए इतना, इस पोजीशन के लिए इतना, इस पोजीशन में इतना, इस पोजीशन के लिए इतना, बताया था। जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, बताया था, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। This is the most important topic, and it's a very easy explanation from my side also. I tried my best. कुछ नहीं करना है, जहां पर पॉइंट पे निकालने वाला है वहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। पहले तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस, E इंटू 4πr², ठीक है, E इंटू 4πr²। अब वो r डिपेंड करता है, लेस देन r है, और यहाँ पर ग्रेटर देन r से, तो ये ऑन द सरफेस इनसाइड, ये क्या सेकंड केस था, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल्स का मतलब ये होता है, और ये वाला आउटसाइड, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। एंड ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट दिस मच थिंग ओनली, डोंट राइट ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑफ दैट, बस डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रिक को शो करना है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस आर को बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिके होते जाएगी। ऑन द सरफेस यू विल गेट द व्हाट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द सरफेस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फिर मैक्सिमम के बाद जैसे जैसे हमने आर की वैल्यू को दूर ले जाओगे, इलेक्ट्रिक की वैल्यू धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। सो बिकॉज दिस इज द ग्राफ फॉर दिस वन, जो डिके वाला ये किसको शो कर रहा है, E is inversely proportional to q/r²। You have to represent this also in a very proper manner. Thank you so much. ठीक है, तो डाउट होगा बनाओ। और एक टॉपिक बचा हुआ है इस टॉपिक का, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पैरेलल प्लेट्स, उसको मैं कराऊंगा। उसके बाद इससे सारे अपन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में रिसेंटली आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व दिस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं, अभी जो एग्जाम हो चुका है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस और जो लास्ट ईयर के और क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो कीप ऑल द फॉर्मूलास इन वन कॉपी, एक फॉर्मूला कॉपी बना लेना या फिर नोट कर लेना, बिकॉज जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, और यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर याद नहीं आएगा आप लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेमोराइज ऑल द डेरिवेशन एज वेल एज द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। फॉर्मूला याद होने से भी काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट इट इज इंपॉर्टेंट। सिंपल डेरिवेशन। थैंक यू सो मच। ग्राफ भी बहुत इजी है, समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आस्क मी, है ना। थैंक यू।